चले आ जाए अब इसी मत में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसके अलावा प्रोजेक्ट की थोड़ी बहुत थियरी के हवाले से क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली ECC एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सितंबर 2020 आई मीन। Kingdom Co is a nationwide chain of garden centers selling products such as plants, fertilizers, tools, and garden furniture. It was established 20 years ago by the current team of executive directors and achieved a listing on its local stock market 4 years ago. 4 साल पहले लिस्ट हुई। Since listing, the company has made consistent profits and has been able to increase its dividends each year. The executive directors collectively own between 25% of the issued share capital. The remaining shares are held by a number of investors, with none of them owning more than 10% of the issued share capital. मेजोरिटी शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स ही हैं, उनके अलावा डिसीजन मेकिंग पावर किसी के पास नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर्स हैं भी तो वो 10% तक के होल्डर नहीं है, क्योंकि 10% का होल्डर अपना डायरेक्टर बिठा सकता है। Two of Kingdom Co's company's major competitors have been taken over in the last 2 years. Media coverage suggests that further takeovers are possible. Potential acquirers include other chains of garden centers, property developers, and supermarket chains looking to diversify their business into the profitable garden center sector. ठीक है. As yet, no potential acquirer has approached Kingdom Co to buy the whole chain, although Kingdom Co has had inquiries from other businesses wanting to purchase individual garden centers. Kingdom Co can sell a number of individual garden centers without threatening its continued existence. बहुत सारे कंपेटिटर्स ऐसे हैं जिन्हें एक्वायर कर लिया गया। ये भी समझ रहे हैं कि शायद इन तक कोई इंक्वायरी आएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। अगर आती है तो ये सेपरेटली अपने कुछ गार्डन सेंटर्स बेच देंगे, लेकिन कंप्लीटली अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं करेंगे। ठीक है। Kingdom Co's executive directors remain committed to the business. They are fearful for a takeover, believing that the new owners will want some or all of them to leave the company. They have therefore been considering possible defenses against a takeover bid. ये takeover की तरफ नहीं जाना चाहते। Kingdom Co's chief executive has received two proposals from directors. Sell individual garden centers, which would be particularly attractive to purchasers. Disposal of these centers would make Kingdom Co overall a less attractive purchase. Pay the executive directors higher remuneration and change their contracts so that they would receive much higher compensation for loss of office if their contracts were terminated early. अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होते हैं तो इन्हें पैसे ज्यादा मिले, इसके लिए सैलरी बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि भाई कुछ गार्डन सेंटर्स बेच देते हैं ताकि कोई हमें आके हॉस्टाइल तौर पे टेक ओवर ना करे, कोई ज्यादा होल्डिंग हमारी एक्वायर करके हमें निकाल न दे। क्योंकि इनके पास 25% है, मार्केट में 75% है। कोई भी आहिस्ता 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 एक्वायर करके उस लिमिट तक पहुंच सकता है कि वो मेजोरिटी शेयर होल्डर बन जाए। तो उससे बहरहाल ये डर रहे हैं। Kingdom Co's chief executive believes, however, that any defense Kingdom Co adopts should also strengthen the company's future. She is therefore proposing to expand the company's current limited sales of camping products in its garden centers by establishing a chain of Kingdom outdoor shops selling camping, walking, and other outdoor equipment. The outdoor retail sector is competitive, but the chief executive believes that Kingdom Co will be successful. The establishment of the chain of the outdoor shops will be funded solely by debt. The idea being that changing Kingdom Co's finance structure by having significantly more debt would make it less attractive to acquirers. ये कह रहे हैं हम डेट्स के थ्रू ये काम करते हैं, थोड़ी बहुत हमें भी जरूरत है एक्सपेंशन की चीजें बेहतर करने की, उसके लिए हम डेट ले लेते हैं। फाइनेंशियल डिटेल्स पर आ जाए। फाइनेंशियल डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे दी है। Kingdom Co currently has 25 million $1 shares in issue. 25 million, 25 million shares इनके फिलहाल है, with a current share price of 5.56 per share. It also has 0.45 million 6.5% bonds in issue. 4.5 लाख बॉन्ड्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं 6.5% वाले, और 25 मिलियन शेयर्स हैं $1 की नॉमिनल वैल्यू वाले। Each 6.5 bond has a nominal value of $100 and is currently trading at 104 per 100. हर बॉन्ड जो $100 का है वो 104 पे ट्रेड हो रहा है। 4.5 लाख क्वांटिटी है इन बॉन्ड्स की, 4.5 लाख क्वांटिटी है इन बॉन्ड्स की। The premium on redemption of the bonds in 3 years time is 2%, यानी 100 का नजर आ रहा है तो 102 पे रिडीम होगा। Based on a yield to maturity approach, the after tax cost of the bonds is 4.1%. 4.1% इन्होंने आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट भी जो है वो दे दिया है और क्लियर बताया है कि ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ द बॉन्ड है। Kingdom Co's quoted equity beta for its existing garden center business is 0.9. अभी जो इक्विटी बीटा चल रहा है इनका वो 0.9 चल रहा है। ठीक है। Kingdom Co plans to issue 0.6 million 6 लाख 7.5 new bonds
7.5% के ऊपर 6 लाख नए बॉन्ड इशू करने की बात कर रहे हैं, ईच विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ $100. The bonds will be redeemable in 4 years time at a premium of 8%. At a premium of 8%. The coupon on these bonds will be payable on an annual basis. Annual basis पे coupon pay होगा. These bonds are anticipated to have a credit rating of BBB minus. Credit rating का सीन क्या होता है सर? जब आप ये कहते हैं ना कि सिमिलर बॉन्ड्स के ऊपर ये रेट ऑफर हुआ, तो सिमिलर बॉन्ड्स का मतलब ये है कि इन्हीं क्रेडिट रेटिंग वाला बॉन्ड. क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि वो कंपनी कितनी मजबूत है, पैसे लेके भागेगी तो नहीं. अगर एक बुरी रेटिंग वाली कंपनी है, मतलब उसका पास रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं. BBB माइनस इज फेयरली रीजनेबल रेटिंग, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन एक रीजनेबल रेटिंग है. The issue of the new 7.5 bonds will not affect the market value of Kingdom shares or the existing 6.5 bonds. इनकी market value नहीं हिलेगी, ठीक है. The market value of the new bonds will be determined by using information related to Kingdom Co's credit rating and the 4 bonds which the government has issued to estimate Kingdom Co's yield curve. All the bonds are of the same risk class. Details of the bond are as follows. ये similar bonds दिए हुए इन्होंने हमें. इन सब की रेटिंग भी BBB माइनस ही है. इन सब की भी रेटिंग यही है, यहाँ पर आ रही है, क्रेडिट रिस्क स्प्रेड आ रहा है, ठीक है. ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, इनकी एनुअल यील्ड है, रिडेम्पशन का टाइम है और इनके स्प्रेड्स आ रहे हैं. इस तरह से आई कैप केडी कभी कैलकुलेट नहीं करवाता, आज तक कभी करवाया नहीं है. लेकिन चूंकि ये एक मुनफरिद अंदाज है केडी को करने का, तो मैंने सोचा मैं वर्कशॉप में करवा देता हूँ. टेस्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन अगर आता होगा तो एक अच्छी बात है कि तुम लोगों को ही करना आता है. तो ये मैं करवाऊंगा. इसका केडी कैसे कैलकुलेट होता है नए वाले बॉन्ड्स का, ये नए बॉन्ड्स के लिए है बेसिकली. तो ये मैं इंशाल्लाह आपको कैलकुलेट करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा बताऊंगा कैसे होता है. Kingdom Co plans to invest 60 million in non-current assets for the outdoor shops. Working capital requirements can be ignored. Currently, Kingdom Co's non-current assets have a net book value of 150 million. It is assumed that the proportion of the book value of non-current assets which will be invested in the outdoor shops and the garden centers will give a fair presentation of the size of each business within Kingdom Co. The asset beta of similar companies in the outdoor retail sector is assumed to be 0.88. ये जिस business में जा रहा है, जिस नए business में ये जा रहा है, उस नए business में जो beta asset चल रहा है वो 0.88 चल रहा है. Before taking into consideration the impact of this new investment, Kingdom Co's forecast pre-tax earnings for the coming year is 24 million. इस प्रोजेक्ट के अलावा 24 मिलियन की हद बनती है. It is estimated that the new investment will make a 10% pre-tax return. नई इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न बनेगा. The corporation tax rate applicable to all companies is 25% per year. Current risk-free rate is estimated to be 4% and market risk premium is 9%. यहाँ पे आपको KE निकालने में आसानी होगी. ये देखो existing beta equity दिया हुआ है, इसने बिल्कुल दिया हुआ है. Existing risk-free rate दिया हुआ है, जी सर दिया हुआ है. Equity risk premium दिया हुआ है, जी सर दिया हुआ है. तो आप आज की KE कैलकुलेट कर सकते हैं. आप आज की KD कैलकुलेट कर सकते हैं. मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स ये सारी चीजें दी हुई, ठीक है. आगे कहते हैं Kingdom Co's annual report contains a general commitment to act with social responsibility in line with society's expectations. It also commits to paying its staff fairly in accordance with their responsibilities and stats that its staff are vital to its success. To try to improve the situation of low-paid employees, the government has recommended a basic hourly wage as the minimum level employees should be paid, although this minimum is not legally enforceable. A newspaper investigation has revealed that some of the staff in Kingdom Co's garden centers in the north region of the country are paid up to 15% less per hour than the recommended minimum wage. Most of these staff are part-time staff working limited hours each week. The manager of Kingdom Co's northern region centers, when asked to comment, stated that Kingdom Co had obligations to its shareholders to control staff cost. Lower pay levels were necessary to differentiate between staff, ensuring that managers and staff with experience and the expertise were appropriately rewarded. इन्होंने कहा भाई किसी का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, किसी का कम होता है, तो हमें ये फर्क रखना पड़ता है ताकि हम कम एक्सपीरियंस वाले को कम पैसे दें. The manager commented that the pay levels are also reflected the lower commitment of Kingdom Co, which part-time staff made compared with full-time staff. ये वाली भी एक बात है, कमिटमेंट भी इसमें कम नजर आ रहा है. अब आपको क्या करना है? Discuss the feasibility and effectiveness of the defense strategies of selling off individual garden centers in enhancing directors' remuneration. ये theory है, ये हम discuss करते हैं अभी. Prepare a report for the board of directors which estimates the company's cost of capital before the new bonds are issued. Existing WACC मांग रहा है.
एक ये कह रहा है कि भाई बॉन्ड इश्यू करने से पहले वैक निकालो, एस्टिमेट्स द मार्केट वैल्यू एंड यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ द न्यू बॉन्ड्स, ये मैं करवाऊंगा आपको। नए बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू क्या बनती है, नए बॉन्ड्स की यील्ड टू मैच्योरिटी क्या बनती है, ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। एस्टिमेट द रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल द न्यू बॉन्ड्स आर इशूड, ये जब हम ये सेकंड स्टेप कर लेंगे तो थर्ड पे आएंगे। Estimate the impact of the chief executive's proposal and forecast after tax earnings for the coming year, इससे क्या फर्क पड़ेगा, and discuss the impact of Kingdom Co's cost of capital, the reaction of equity and bond holders to the chief executive's proposal. The discussion should include explanation of any assumptions made in the estimates. ये वाला पार्ट भी हम इंशाल्लाह ताला कर लेते हैं। Discuss the approach taken to employee remuneration by the company's northern region and the issues associated with it. Again ये theory वाला पार्ट है, इसको भी इंशाल्लाह ताला कैलकुलेशन के बाद पार्ट ए और पार्ट सी कैलकुलेशन के बाद कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप एग्जिस्टिंग वैक कैलकुलेट करो जल्दी से। एवरीबॉडी शुड डू, कोई भी वक्त जाया नहीं करेगा। एग्जिस्टिंग वैक इस सवाल का कैलकुलेट करें, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप लोगों से शेयर कर लिया है। एग्जिस्टिंग वैक कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद हम बाकी कैलकुलेशन करते हैं। चलें जी, चंद एक आंसर्स हमें मिल गए हैं, तो इन आंसर्स की रोशनी में अब हम पहले वैक कैलकुलेट करते हैं एग्जिस्टिंग। वही हमारा तरीका, वैक कैलकुलेट करने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, हमें कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए, हमें वैल्यू ऑफ डेट चाहिए। ये चार चीज़ें हमें अगर मिल जाएं तो हम यहाँ पे अपना वैक कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आए पहले इसको ज़रा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जिस्टिंग वैक में कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करूँ, सो लेट्स पुट द हेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वैक, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, ये हाँ, एग्जिस्टिंग वैक की हमने हेडिंग डाल दी। सबसे पहले के ही देख लेते हैं। सर के ही कैलकुलेट होगा आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा इक्विटी, ठीक है। तो अगर मैं के ई की बात करूं, मेरे पास क्या रिस्क फ्री रेट गिवन है? सर बिल्कुल, रिस्क फ्री रेट उन्होंने नीचे हमें कैलकुलेशन में दिया हुआ है। 4% का रिस्क फ्री रेट है और 9% का इक्विटी रिस्क प्रीमियम है, ये यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहा है, ठीक है। 4% का रिस्क फ्री रेट है और 9% का हमारे पास प्रीमियम है। बीटा इक्विटी इन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ है, दैट इज 0.9, ठीक है। तो 4% प्लस 9% माइनस 4% मल्टीप्लाई बाय 0.9, ठीक है। या आप के ही कैलकुलेट करेंगे, आपके पास टेक्निकली आ जाएगा 4 प्लस, ठीक है, यह आ जाएगा 12 पॉइंट, अच्छा 9% मार्केट रिटर्न नहीं है, 9% इज द प्रीमियम इटसेल्फ, तो आर एफ माइनस आर एम ही है, आर एम माइनस आर एफ। ये हमें यहाँ पे छोटी सी करेक्शन करनी चाहिए। दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.9 डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9% इज द प्रीमियम, बिल्कुल सही है। तो इसका रिजल्ट मेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है 12.1%, ठीक है। ये 12.1% बन जाता है। ये मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया। सर जहां तक बात है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास मौजूद है? बिल्कुल सर, 25 मिलियन शेयर्स हैं कंपनी के, ये नजर आ रहा। और हर शेयर की जो इस वक्त वैल्यू चल रही है वो 5.56 चल रही है। तो सिंपल आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 5.56 इंटू 25 इन मिलियन आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 5.56 इंटू 25 इन मिलियन आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 139 मिलियन डॉलर, ठीक है। 139 मिलियन डॉलर यहाँ पर आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया। अब इसी तरीके से आपके पास आनी चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। सर अगर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट की बात करें तो 0.45 मिलियन बॉन्ड्स हैं, 0.45 मिलियन बॉन्ड्स हैं और हर बॉन्ड की वैल्यू 104 चल रही है। तो आप सिंपल यहाँ पे भी मिलियन में कैलकुलेट करने के लिए 104 को 0.45 से मल्टीप्लाई करा दें। 104 मल्टीप्लाई बाय 0.45 ये बन जाता है हमारे पास एट द सेम टाइम 46.8, ठीक है, 46.8 हो गया। और केडी बहुत हद तक इन्होंने हमें यहाँ पे निकाल के एक जगह पे दी हुई है, विच इज 4.1%। आफ्टर टैक्स केडी इन्होंने हमें यहाँ पे निकाल के दी हुई है। तो अब हमारे पास चारों चीजें यहाँ पर जमा हो गई। पोस्ट टैक्स केडी इज 4.1%, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग वैक अगर निकालना चाहूँ तो कोई मसला ही नहीं है। सर मेरी जो इक्विटी है 139 मिलियन की, इसकी जो कॉस्ट है वो है 12.1%, ठीक है। मेरा जो डेट है दैट डेट इज अबाउट 46.8 मिलियन, उसके ऊपर जो कॉस्ट है दैट इज 4.1%। और डिनोमिनेटर में मुझे इन दोनों को प्लस कर देना है, यानी कि 139 प्लस
46.8 कर देना, ठीक है। एक का किसी का जवाब 11% आया था, मेरा ख्याल 11% नहीं होगा, प्लस 46.8 मल्टीप्लाई बाय 4.1% डिवाइडेड बाय 139 प्लस 46.8, ठीक है। बिल्कुल 10.08 जिन लोगों ने निकाला, 10.1 भी जिन्होंने निकाला, बिल्कुल सही है। 10.08 टू बी प्रीसाइज इज द राइट आंसर। और अगर राउंडेड ऑफ देखें तो 10% का वैक हमें यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। 10% का हमें यहाँ पे वैक नजर आ रहा है। 6.556 आ रहा है मोइस तुम्हारा। टैक्स रेट देखो उसने दिया हुआ है ऑलरेडी, उसने बोला है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 4.1%। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, अभी हमने रिवीजन में इस चीज को हाईलाइट किया था कि अगर एक चीज ऑलरेडी आफ्टर टैक्स हो तो आप उसके ऊपर मजीद टैक्स रेट नहीं लगाएंगे। ये चीज का ख्याल रखना है खल्ली वल्ली। चले, ठीक हो गया, सही है। सो यहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग वैक निकल आया। किसी की अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो उसके साथ मैच करें और अपने पास रेक्टिफाई करें, ठीक है। कोई सवाल हो, कहीं पे कोई मसला हो तो वो जरूर पूछें। चलो ये हमारे एग्जिस्टिंग वैक कैलकुलेट हो गया। अब दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है सर? दूसरी रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है एस्टिमेट द मार्केट वैल्यू एंड यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ द न्यू बॉन्ड, यानी ये हमसे केडी मांग रहा है। यहाँ पे कह रहा है भाई केडी निकाल लो, और यहाँ पे कह रहा है भाई इसका मार्केट वैल्यू निकाल लो। बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकाल के दो और केडी निकाल दो, लेकिन मार्केट वैल्यू निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन बड़ी मुनफरिद दी हुई है। नॉर्मली आईकैप इस तरह नहीं पूछता। नॉर्मल तरीका तो आपको आता भी है, इतना कोई मसला उसमें है भी नहीं। मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट मेथड इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एसीसीए में टेस्ट होता है। अगर कभी इस तरह की कोई चीज आ जाती है तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो गौर से सुनना है, समझना है कि कैसे होगा। देखो ये सिमिलर बॉन्ड्स है, ये सारे ना सिमिलर बॉन्ड्स है। इनकी इस वक्त जो मार्केट में यील्ड चल रही है वो चल रही है 4%। ठीक है, मार्केट में जो इनकी यील्ड चल रही है वो चल रही है 4%। 4, 4.3, 4.7, 5.2, ये अलग अलग क्यों है? इनकी रिडम्शन अलग अलग है। 1 साल का बॉन्ड है तो 4% यील्ड है, 2 साल का है तो 4.3 है, 3 साल का है तो 4.7 है, 4 साल का है तो 5.2 है, ठीक है। ये इनका कूपन रेट नहीं है, कोई इसको कूपन रेट ना समझ ले खुदा ना खास्ता। ये कूपन रेट नहीं है, दिस इज यील्ड, यानी ये केडी है इन बॉन्ड्स का। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल वाले बॉन्ड्स का ये केडी है। यानी ये ऐसे है कि 4 साल में आपको 5.2% का रिटर्न मिल रहा है, 3 साल में आपको 4.7 का मिल रहा है, 2 साल में 4.3 का मिल रहा है, 1 साल में 4% का मिल रहा है। ये 4 रिटर्न के स्टेजेस हैं। इसके अलावा उन्होंने स्प्रेड बताया। स्प्रेड क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सर? रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब किसी का रिस्क ज्यादा होता है तो उसका स्प्रेड भी ज्यादा होता है। स्प्रेड हमेशा बेसिस पॉइंट्स में होता है। 56 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है 0.56%। क्योंकि सर 100 बेसिस पॉइंट्स पे 1% बनता है, मैंने 12 अपनी बीएफडी की क्लासेस में ही बताया। ये हो जाएगा 0.78%, ये हो जाएगा 106 का मतलब 1.06%, और ये हो जाएगा 1.35%। ठीक है सर, चारों सालों की जो मेरे पास यील्ड मौजूद है, चारों सालों की जो मेरे पास यील्ड मौजूद है, मुझे इसमें इस क्रेडिट स्प्रेड को ऐड कर देना चाहिए। मुझे इसमें इस क्रेडिट स्प्रेड को ऐड कर देना चाहिए चारों सालों में। यानी अगर मैं यहाँ पे इसी बॉन्ड के आगे इसकी बेसिकली यूं समझो कि एनुअल एनुअल यील्ड निकालना चाहूं आफ्टर क्रेडिट स्प्रेड, तो वो कुछ इस तरह से होगी। इन तीनों में अगर हम देखते हैं क्रेडिट स्प्रेड हमारा, तो वो कितना है? पहले पूरा प्रोसेस देख लो फिर सवाल कर लेना। पहले पूरा देख लो मैं करके आ रहा हूँ। 0.56%, ठीक है। यह है 0.78%, फिर है 1.06, और फिर है 1.35। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ठीक है। ये चार आपके पास क्रेडिट स्प्रेड है। अगर आप ये क्रेडिट स्प्रेड को एडजस्ट कर दो तो अब आपकी यील्ड कितनी बन जाती है? एडजस्ट करने से मतलब ऐड कर दो, ठीक है। आपने इसके अंदर इस क्रेडिट स्प्रेड को ऐड कर दिया। सर अगर मैं ऐड कर देता हूं तो 4% टू ये हो जाता है 4.56, ठीक है। फिर 4.3 प्लस 0.78 ये हो जाता है 5.08, ठीक है। 4.7 को प्लस करें सर 1.06, ये हो गया 4.7 प्लस 1.06 इज इक्वल्स टू, ये आ जाता है हमारे पास 5.76।
ठीक है। देन वी हैव 5.2 प्लस 1.35% इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है 6.55%। ये चारों आपके पास अलग अलग सालों की यील्ड आ गई। अब आप इंटरेस्ट देखें, जो जो आपकी कैश फ्लोज हैं, बॉन्ड के जो कैश फ्लोज हैं वो क्या है, न्यू बॉन्ड के कैश फ्लोज। सर अगर मैं नए बॉन्ड के कैश फ्लोज देखूं तो मेरे पास चारों सालों के इसके कैश फ्लोज मौजूद है, चारों सालों के कैश फ्लोज मौजूद है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। सर एक है मेरे पास इंटरेस्ट की कैश फ्लोज, ठीक है, एक है मेरे पास रिडेम्पशन की कैश फ्लोज। कितने सालों का मेरे पास बॉन्ड आ रहा है, सर मेरे पास जो बॉन्ड की लाइफ है वो है तकरीबन आपके पास 4 साल। Plans to issue 0.6 million, 7.5 new bonds, each with a nominal value of 100. These bonds will be redeemable in 4 years. 4 साल में रिडीम होंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 8%, 7.5% है। नॉमिनल वैल्यू 100 है, यानी $7.5 का आप इसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। तो आओ चारों साल प्लॉट कर लो, 1, 2, 3 और 4, ये चारों साल आपने प्लॉट कर लिया। इंटरेस्ट आपका सिंपल सिंपल सादा सादा 7.5 बनता है, 7.5 और 7.5। और रिडेम्पशन की अगर मैं बात करूं तो सर रिडेम्पशन की कैश फ्लोज मेरे एज सच एट द सेम टाइम यहाँ पे 108 के बन जाते हैं, ठीक है। इन चारों का आप टोटल कर लो। अब तक ये वही है जो हम करते आ रहे हैं, हम आई कैप के सवालात करते वक्त ऐसा ही करते थे, कैश फ्लोज को प्लॉट करके उनकी मार्केट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग करते थे, ठीक है। 115.8 यही बनता है ना, कैलकुलेटर पे कर लो, 115.5 बनता है सर, 108 और 15 और 115.5, ठीक है। ये मेरे कैश फ्लोज बन गए। मार्केट वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, मार्केट वैल्यू के लिए मैं इन रेट्स के ऊपर इसको डिस्काउंट कर लूंगा, इन रेट्स के ऊपर इसको डिस्काउंट कर लूंगा। 7.5 एक साल के लिए डिस्काउंट होगा 4.56 पे, ये 7.5 एक साल 2 साल के लिए डिस्काउंट होगा 5.08 पे, ये 7.5 3 साल के लिए डिस्काउंट होगा 5.76 पे, और ये 115 4 साल के लिए डिस्काउंट होगा 6.55 पे, क्योंकि 4 साल का मिलता जुलता बॉन्ड, 4 साल का मिलता जुलता बॉन्ड इसी रेट के ऊपर आज मार्केट में अवेलेबल है। तो चौथे साल पे डिस्काउंटिंग इस रेट के ऊपर होगी, तीसरे साल 3 साल के लिए डिस्काउंटिंग इस रेट के ऊपर होगी। इस तरीके से बहरहाल हमारे पास ये अलग अलग रेट्स आते जाएंगे, ठीक है, अलग अलग रेट्स हमारे पास इस तरीके से आते जाएंगे। हम इन चारों रेट्स पे इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे और डिस्काउंट करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू को निकालेंगे। नॉर्मली आई कैप आपको गेडी निकाल के दे देता है, प्री टैक्स आप डिस्काउंट करते हैं, मार्केट वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर वो ऐसा करे कभी तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये यील्ड टू मेच्योरिटी का सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, आप चारों से इसको डिस्काउंट करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर एट इंटरेस्ट रेट, कौन सा इंटरेस्ट रेट होगा सर, इधर होगा 4.56, इधर होगा 5.08, इधर होगा 5.76 और इधर होगा 6.55, जो कंपेरेटिव मिलती जुलती मार्केट्स में है। आप इनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लें, उसको टोटल कर लें, मार्केट वैल्यू बन जाएगी। इन सब की प्रेजेंट वैल्यूज को आप टोटल कर लें, आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो आए इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। सर 7.5 को आप मल्टीप्लाई करें 1 + 0.0456 रेस टू द पावर -1, एक साल पे डिस्काउंट कर लें, ये बन जाता है करीब करीब 7.17, ठीक है। अब दूसरे साल पे कर लें, ये इंटरेस्ट रेट यहाँ अप्लाई होगा 508, ये हो जाएगा 2 साल के ऊपर, ये बन जाता है करीबन 6.8, 6.79 कर लो चलो। तीसरा हमारे पास इंटरेस्ट रेट है 5.76, इसको कर लो 3 साल के ऊपर। एनवीटी मत यूज कर लेना, सिंपल जो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है वो यूज होगा, 6.34। और चौथा है 115.5 मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.655 रेस टू द पावर -4, इसको 4 साल पे लेके आओ, ये बन जाता है 89.61। अब आप इन चारों को क्लब कर लो, आपकी मार्केट वैल्यू बन जाएगी 7.17 + 6.79 + 6.34 + 89.61, ये बन जाता है टोटल 109.91, 109.91। ये आपकी मार्केट वैल्यू बन जाती है ऑफ दिस बॉन्ड। आप इसे 100 की नॉमिनल वैल्यू पे बेशक
इशू करो, इन्वेस्टर का फायदा है, जो ये बॉन्ड ले रहा है वो मार्केट में इसको 109 पे बेचेगा, उसका फायदा है। कंपनी बेशक इसको 100 पे इशू करे, मार्केट वैल्यू बहरहाल इसकी इतनी बनती है, मार्केट वैल्यू बहरहाल इसकी इतनी बनती है। और अगर मैं टोटल मार्केट वैल्यू निकालना चाहूँ तो सर मैं कितने बॉन्ड इशू कर रहा हूँ, मैं 0.6 मिलियन कर रहा हूँ, तो 109.91 इंटू 0.6 इंटू 0.6 ये बन जाता है मेरा करीब करीब 65.95, ये बन जाता है मेरा करीब करीब 65.95 का नंबर, 65.95 का नंबर यहाँ पे मेरे पास जो है बन जाता है, 946 टू बी प्रिसाइज, मैंने राउंड ऑफ करके 95 कर दिया। 65.95 का मेरे पास ये टोटल मार्केट वैल्यू तमाम बॉन्ड्स की मिला के बन जाती है। अब आप सिंपल इसका आईआरआर निकाल लो, आईआरआर निकालोगे तो आपके पास इसकी पोस्ट टैक्स केडी आ जाएगा। आप इंटरेस्ट को पोस्ट टैक्स कर दो, आप मार्केट वैल्यू को प्लॉट कर दो, आप रिडेम्पशन को प्लॉट कर दो, सिंपल आईआरआर निकालो, आपके पास केडी आ जाएगा जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, पहले मार्केट वैल्यू आ जाएगी, मार्केट वैल्यू एक बॉन्ड की कितनी है सर, 109.91, ये मार्केट वैल्यू। इंटरेस्ट को कर दो 1 माइनस टी, 25% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, 25% का इंटरेस्ट रेट है, तो 7.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.75 से तो ये बन जाता है 5.63, 625 बनता है, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 5.63 5.63 5.63 और 5.63। बाकी आप यहाँ पे ले लें रिडेम्पशन का कैश फ्लो, ठीक है, रिडेम्पशन का कैश फ्लो आपका 108, 108 आपका रिडेम्पशन का कैश फ्लो बन जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कर लो उसको टोटल, और मुझे जल्दी से फटाफट इसका आईआरआर निकाल के बताओ। आईआरआर उसी तरह निकलेगा, एक एनपीवी के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, एक एनपीवी के ऊपर नेगेटिव वैल्यू, दोनों को इंटरपोलेशन फॉर्मूला में डालो और इंटरपोलेशन फॉर्मूला में डाल के इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, जल्दी से। 115 नहीं, 115 होगा, 113 होगा, 113 होगा, 108 और 5 13, 113.63 63, ठीक है, ये आपके नेट कैश फ्लोज बन गए। अब ये नेट कैश फ्लोज का आप यहाँ पे आईआरआर कंप्यूट कर लें, जो आईआरआर है वही आपका पोस्ट टैक्स केडी है। सर पोस्ट टैक्स केडी का है बोला आपने इसको, इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट को 1 माइनस टी कर चुके हो, इंटरेस्ट को 1 माइनस टी कर चुके हो, ठीक है। जल्दी से इसका आईआरआर कंप्यूट करके बताएं मुझे। मेरे पास वैसे हुआ हुआ है कैलकुलेट, 4.6 4.7 के करीब आ रहा होगा, 4.7% के आसपास हुआ होगा, मैंने एक्सेल में कैलकुलेट कर लिया था इसको, 4.7% के आसपास इसका आपका पास आईआरआर आएगा। दिस इज द पोस्ट टैक्स केडी ऑफ दिस न्यू बेसिकली आपका कैपिटल स्ट्रक्चर या न्यू न्यू बॉन्ड बेसिकली। इसको ऑथेंटिकेट कर लें, वेरीफाई कर लें, आप लोगों के पास भी यही नंबर आ रहा है। और कितने लोग हैं जिनको कॉपी करने का टाइम चाहिए, कॉपी करना है आप लोगों ने या साथ साथ कर लिया? हाँ, यही 4.7 के आसपास आपके पास जो है इसका आईआरआर आएगा, 4.7% के आसपास आएगा, 4.73 72 68 69 ये सारे मिलते जुलते। चलिए जी, अब अगर हमारे पास आईआरआर वैलिडेट हो गया है तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ यहाँ पे जो है वो मूव कर सकते हैं। हमारे पास दोनों बॉन्ड्स की ये सूरत हाल बन गई। अब इन्होंने हमसे क्या मांगा था यहाँ पे, अब इन्होंने हमसे यहाँ पे कहा था एस्टिमेट द रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल द न्यू बॉन्ड्स आर इशू। अगर ये नए बॉन्ड्स इशू हो जाते हैं तो अब केई के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और केई के बाद रिवाइज वैक
कितना निकल के आएगा। रिवाइज वैक के ऊपर बात करें, केई के ऊपर बात करें, ये वाली बात यहाँ पे जो है वो इन्होंने हमें कैलकुलेट करने के लिए कही है। ऑल राइट, सो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सर इसके लिए जो इन्होंने हमें डिटेल दी है या जो हिंट दी है वो क्या दी है, यहाँ पे देखें, कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट 60 मिलियन। सर ये 60 मिलियन का नंबर कहाँ से आया? देखो $100 के ऊपर, $100 के ऊपर ये बॉन्ड इशू कर रहे हैं, 0.6 मिलियन बॉन्ड्स है, तो मल्टीप्लाई करो, रेज कितना हो रहा है अमाउंट? सर रेज हो रहा है 600 मिलियन। 600 मिलियन का नंबर ये यहाँ पे रेज कर रहे हैं। ये किस में इन्वेस्ट होगा? आउटडोर शॉप्स के अंदर। पहले कौन सा बिजनेस कर रहे थे? गार्डन सेंटर। अब देखो बिजनेस रिस्क यहाँ चेंज हो गया, यहाँ बिजनेस रिस्क चेंज हो गया, ठीक है, बिजनेस रिस्क यहाँ पे हमारे पास जो है वो चेंज हो गया। तो अब ये केई जो आपने पहले निकाली थी, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपने पहले निकाली थी, ये जो बीटा इक्विटी था, ये तो बीटा इक्विटी सिर्फ गार्डन सेंटर्स के बिजनेस की बात कर रहा था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, एग्जिस्टिंग गार्डन सेंटर बिजनेस। गार्डन सेंटर बिजनेस का 0.9 का बीटा इक्विटी था, दैट वाज एक्सेप्टेबल, हमने केई कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब तो आप ये 60 मिलियन को एक नए बिजनेस में लगाने जा रहे हो। नए बिजनेस के करंट एसेट्स कितने हैं? नॉन करंट एसेट्स सर ये 60 मिलियन है, और जो पुराने एसेट्स हैं, करंट नॉन करंट एसेट्स हैव नेट बुक वैल्यू ऑफ 150 मिलियन। जो पुराने एसेट्स हैं इनकी तकरीबन आपके पास वैल्यू आ रही है 150 मिलियन के आसपास। तो जो ओल्ड बिजनेस है, एसेट्स ओल्ड बिजनेस 150, एसेट्स न्यू बिजनेस 60। जब भी इस तरह से दो बिजनेसेस जमा हो जाते हैं और हमें बीटा इक्विटी पे पहुंचना होता है, तो हम कैसे पहुंचते हैं? हम बीटा एसेट का वेटेड एवरेज लेके पहुंचते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने मर्जर एक्विजिशन में भी रेगुलर क्लासेस में बताया है। हमें वेटेड एवरेज लेना होता है दोनों बिजनेसेस के बीटा एसेट का। आप बीटा एसेट का वेटेड एवरेज लेते हैं, उस वेटेड एवरेज बीटा एसेट के थ्रू, वेटेड एवरेज बीटा एसेट के थ्रू हमें बीटा इक्विटी तक पहुंचना होता है, और फिर इवेंचुअली उस बीटा इक्विटी के थ्रू हम जो है वो सीएपीएम के अंदर उसको प्लॉट करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी वगैरह कैलकुलेट करते हैं। सर ये तो रिस्क एडजस्टेड वैल्यू जैसा नहीं है, उसमें तो हम रीगेयर अनगेयर करते थे। भाई वो तब करते थे जब आपको डिस्काउंटिंग करनी होती थी। इधर ये प्रोजेक्ट कोई इवैल्यूएशन नहीं करवा रहा आपसे, ये कह रहा है मुझे करना है। ये प्रोजेक्ट करने के बाद, ये प्रोजेक्ट करने के बाद पूरी कंपनी का वैक क्या होगा वो निकाल के बता दो। सिंपल वो ये बात कर रहा है, पूरी कंपनी का वैक कितना होगा वो बता दो। तो पूरी कंपनी के वैक के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, पूरी कंपनी के वैक के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए। वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए मुझे बीटा इक्विटी चाहिए, बीटा इक्विटी निकालने के लिए मुझे बीटा एसेट चाहिए, और बीटा एसेट निकालने के लिए मुझे वेटेड एवरेज बीटा एसेट चाहिए, मुझे वेटेड एवरेज बीटा एसेट चाहिए। अच्छा देखो, अगर एसेट्स की वैल्यू दी हुई हो तो कोशिश ये करो कि बीटा एसेट इस पे निकालो। अगर एसेट्स की वैल्यू नहीं दी हुई हो वेटेड एवरेज, तो फिर आप इक्विटी डेट कैपिटल स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर वेटेड एवरेज कर सकते हैं। लेकिन तरीका कार यही है कि आप एसेट्स की वैल्यू के ऊपर निकालें, ठीक है। या हमें बुक वैल्यू दी हुई है, और बुक वैल्यू एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन कर रही है इन दोनों के बिजनेस डिवीजन का, ठीक है। सर कैन यू रिपीट दिस प्रोसेस? मैं अभी करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, पूरा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। देखो सबसे पहले निकालते हैं वेटेड एवरेज। एक मिनट, सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं वेटेड एवरेज बीटा एसेट। सर वेटेड एवरेज बीटा एसेट अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो हमें दोनों बिजनेसेस का बीटा एसेट चाहिए होगा, ठीक है। दोनों बिजनेसेस का बीटा एसेट चाहिए होगा। पहले मैं गार्डन सेंटर बिजनेस का बीटा एसेट मुझे निकालना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है 0.9। ये देखो यहाँ पे मेरे पास गार्डन सेंटर बिजनेस का 0.9 दिया हुआ है, ये वाला। इस 0.9 को पहले मुझे रीगेयर करके बीटा एसिड पे जाना पड़ेगा, तब जाके मैं वेटेड एवरेज बीटा एसिड निकाल सकता हूं। तो पहले मुझे चाहिए बीटा एसिड ऑफ गार्डन सेंटर। सर उसके लिए सिंपल तरीका कार है, पहले पूरा देख लें कैलकुलेशन, उसके बाद कॉपी कर लीजिएगा। बड़ा सिंपल तरीका कार है। सर बीटा एसिड होता है बीटा इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 - टी, ठीक है। अभी इस प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करने से पहले हमें पता है कि कंपनी की इक्विटी 139 की चल रही है, कंपनी का रेट 46.8 का चल रहा है। ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया, देखो यहाँ कैलकुलेट किया, 139 भी निकाला है और 46.8 भी निकाला है। तो क्या मैं रीगेयर रनगेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे बीटा इक्विटी जो अभी चल रहा था वो चल रहा था 0.9, मल्टीप्लाई कर दो 139 से, अपॉन कर दो 139 प्लस 46.8 को कर दो पोस्ट टैक्स।
46.8 मल्टीप्लाई बाय 0.75। 0.75 क्यों किया सर? 1 माइनस टी किया है बेसिकली। टी जो है वो 25% है, 1 माइनस टी कर दिया। अब जब आप ये करते हो तो आपके पास बीटा इक्विटी, बीटा एसेट कितना आ जाता है इस बिजनेस का सर? 0.9 मल्टीप्लाई बाय 139 डिवाइडेड बाय 139 प्लस 46.8 मल्टीप्लाई बाय 0.75। ये आया है मेरे पास तकरीबन 0.72। 0.72 का मुझे यहाँ पे बीटा एसेट पड़ रहा है। और क्या इस बिजनेस का, ये जो नया बिजनेस मैं करने जा रहा हूं, इसका बीटा एसेट मुझे सवाल के अंदर दिया हुआ है? जी सर बिल्कुल, इसका बीटा एसेट आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है। The asset beta of similar companies in the outdoor retail sector is assumed to be 0.88। ये आपको 0.88 के ऊपर दिया हुआ है, सही। एट द सेम टाइम दोनों बीटा एसेट आपके पास आ गए। अब आप इसका वेटेड एवरेज निकाल सकते हो। अब आप इसका वेटेड एवरेज निकाल सकते हो। एक 0.72 है, दूसरा 0.88 है। एक 0.72 है, दूसरा आपके पास 0.88 है। अब इसको जो है वो बहरहाल निकाला जा सकता है। सर जो 0.72 है उसके पास एसेट्स कितने हैं? उसके पास 150 वाले एसेट्स हैं। जो 0.88 है उसके पास एसेट्स कितने हैं? सर उसके पास एसेट्स हैं 60। और कुल मिला के एसेट्स हो रहे हैं 150 प्लस 60। बीटा एसेट चूंकि बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इक्विटी और डेट को नहीं कर रहा होता, फाइनेंशियल रिस्क को नहीं कर रहा होता, तो एसेट्स के थ्रू उसकी वेटेड एवरेज निकालना एक बेहतर तरीका है। नहीं दिया हुआ तो फिर कंपनी की जो टोटल मार्केट वैल्यू बन रही है उसकी बेस पे निकाल देना। टोटल मार्केट वैल्यू की बेस पे निकाल दो। 150 प्लस 0.88 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 60। पहले पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा। ये बन जाता है मेरे पास वेटेड एवरेज बीटा एसिड बन जाता है तकरीबन 0.77। ठीक है, 0.65 है, उसको एवरेज करके सॉरी राउंड ऑफ करके 0.765 को 0.77 पे ले लेना। ये वेटेड एवरेज बीटा एसिड है। सर अगर ये बुक वैल्यू नहीं दी हुई होती एसेट्स की तो फिर क्या करते? अगर एसेट्स की वैल्यू नहीं दी हुई होती तो फिर क्या करते? फिर भाई आप मार्केट वैल्यू यूज कर लेते। इधर जो आप 150 लिख रहे हो ना, इस 150 की जगह इस 139 प्लस 46.8 को यूज कर लिया जाता है। 139 प्लस 46.8 कितना बन जाता है? ये बन जाता है 185.8। इस 185.8 को यूज कर लिया जाता एज अगेंस्ट 60 मिलियन और से द मार्केट वैल्यू 65.95। ये यूज कर लिया जाता और आप वेटेड एवरेज बीटा एसेट निकाल लेते। लेकिन अगर एसेट्स का डेटा दिया हुआ है तो वो एक बेहतर अप्रोच है, उस तरह निकालना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 0.72 का सॉरी 0.77 का एक वेटेड एवरेज बीटा एसेट आ गया। अब इसको इस्तेमाल करके मुझे बीटा इक्विटी निकालना है। इसको इस्तेमाल करके मुझे बीटा इक्विटी निकालना है। वो कैसे निकलेगा सर? बीटा एसेट इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी इनटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इनटू 1 माइनस टी। ये फॉर्मूला है हमारे पास। बिल्कुल सर। बीटा एसेट है, हाँ भाई, वेटेड एवरेज बीटा एसेट है। बीटा इक्विटी है, नहीं है सर। इक्विटी है, जी सर। 139 की मार्केट वैल्यू है इक्विटी की, यहाँ भी 139 है। डेट दो है सर। कौन कौन से? एक नया एक पुराना। पुराना 46.8 पर है, नया 65। नया है कितना था डेसिमल में? 65.95। नया है 65.95। और सर इन दोनों को आप 1 माइनस 25% से भी मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास बीटा इक्विटी आएगा। बिल्कुल सर, कोई मसला ही नहीं है। 0.77 को डिवाइड करा दो 139 अपॉन 139 प्लस 46.8 प्लस 65.95 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो ये बन जाता है करीब करीब 1.24। ये बन जाता है करीब करीब 1.24। नाउ दिस बीटा इक्विटी विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द केई। अब ये बीटा इक्विटी यूज होगा केई कैलकुलेट करने के लिए। 4% प्लस 9% मल्टीप्लाई बाय 1.24। सेम चीज हमने ऊपर वाली अप्लाई की। 4 प्लस 9 इंटू 1.24 15.16। 15.16 ठीक है। 15.16 यहाँ पे आपका केई बन जाता है। 15.16% आपका केई बन जाता है। इस केई की बेसिस के ऊपर अब नया वैक कैलकुलेट कर लो। इस केई की बेसिस के ऊपर अब नया वैक कैलकुलेट कर लो। न्यू वैक आपका बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे 15.16% आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। इसको 139 मिलियन से मल्टीप्लाई करो। ठीक है,
इसको 139 मिलियन से मल्टीप्लाई करो और फिर उसके बाद बाकी दो ब्रैकेट्स में डेट वाली पोजीशन आ जाएगी। सर यहाँ पे इसने एक लाइन बोली थी कि ये बॉन्ड इशू करने से इक्विटी की मार्केट वैल्यू या पुराने बॉन्ड की मार्केट वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाइन इन्होंने हमें यहाँ पे मेंशन की थी कि इसको इशू करने से पुरानी वाली सिचुएशन पे, पुराने वाली मार्केट वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हम पिक कर सकते हैं। पुराने वाले में हमें पता है 4.1% पे 46.8 है, 4.1% पे 46.8 है। और इसके अलावा तीसरा बॉन्ड जो हमने इशू किया है, इसकी कॉस्ट ऑफ डेट हमने कैलकुलेट की थी, इसका कॉस्ट ऑफ डेट था 4.7%, तकरीबन कितना था यहाँ पे 65.95, 4.7% to 65.95, 4.7% into 65.95। अब आप इसको डिवाइड करा दो तीनों को मिला के, 139 प्लस 46.8 प्लस 65.95, ठीक है। इन तीनों का आप प्लस करा दो, कोई मसला ही नहीं है। सो 15.16 इंटू 139 प्लस 4.1 इंटू 46.8 प्लस 4.7 into 65.95, 139 plus 46.8 plus 65.95, ये बन गया 10.36%। ये बन गया 10.36 या 10.4 के लो, 10.36%। Now this becomes your new WACC or the revised cost of capital। अगर ये कहता ना कि सिर्फ नए प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग के लिए रेट निकाल दो, एनपीवी कैलकुलेट करनी है, डिस्काउंट रेट बता दो क्या होगा, तो फिर मैं ये वेटेड एवरेज बीटा एसेट नहीं लेता। फिर मैं क्या करता, मैं इस 0.88 को इस्तेमाल करके, इस इंडस्ट्री के इस 0.88 के बीटा एसेट को इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन के लिए बीटा इक्विटी कैलकुलेट करता, उस बीटा इक्विटी से केई कैलकुलेट करता, केई के बाद डेट वगैरह वो सारी चीजें कैलकुलेट करता। लेकिन उसका सवाल इसलिए नहीं पैदा होता क्योंकि आप ये नया प्रोजेक्ट सारा का सारा न्यू डेट से कर रहे हो, सारा का सारा न्यू डेट से कर रहे हो, इक्विटी का उसमें अमल दखल ही नहीं है, इसलिए उसने ये रिक्वायरमेंट दी ही नहीं आपको। उसने कहा पूरा वैक निकाल लो, तो ये पूरा वैक हमने वेटेड एवरेज बीटा एसेट से निकाला, जो दो मुख्तलिफ बिजनेसेस के बीटा एसेट्स, रिप्रेजेंटेटिव बीटा एसेट्स का वेटेड एवरेज था, उससे बीटा इक्विटी निकला, बीटा इक्विटी से केई निकला, केई से न्यू वैक निकला। यहाँ पे हम आके हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट भी इधर पूरी हो जाती है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आता है? एवरीवन गेट्स इट? सारे लोग जवाब देंगे भाई? चले जी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। बेहतरीन हो गया भाई। अच्छा जी, फिर इन्होंने चौथे नंबर पे यहाँ पे हमें कहा था एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ द सीईओ's प्रपोजल ऑन फोरकास्ट आफ्टर टैक्स अर्निंग्स। इन्होंने कहा था भाई अगर हम कुछ भी नहीं करते ना, अभी ये नया प्रोजेक्ट नहीं करते, अगर हम ये नया प्रोजेक्ट नहीं करते, कोई इस तरह की कोई और चीज नहीं करते, तो हमारा जो फोरकास्ट आफ्टर टैक्स अर्निंग्स है, ये देखो यहाँ पे जो फोरकास्ट आफ्टर टैक्स अर्निंग्स है हमारी, प्री टैक्स अर्निंग्स है वो 24 मिलियन है। प्री टैक्स लिखा हुआ है वर्ड, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स का हमेशा ध्यान रखो। 24 मिलियन की हमारी अर्निंग्स है। अगर हम ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो हमें 10% प्री टैक्स रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आरओआई हमारा 10% होगा, तो रिवाइज क्या बन जाएगा निकाल लेते हैं। खैर बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, मुझे हैरत हुई थी जब ये एसीसी में मैंने देखी। फोरकास्ट अर्निंग्स बिफोर न्यू प्रोजेक्ट, अगर आप ये नया प्रोजेक्ट नहीं करते तो फोरकास्ट अर्निंग्स कितनी है? 24 मिलियन इंटू 0.75। 0.75 क्यों किया मैंने इसको? पोस्ट टैक्स किया, 18 बन गया, ठीक है। आफ्टर टैक्स अर्निंग्स कह लो उसको, आफ्टर टैक्स कर लो उसको, 18 ये हो गया। अब जो आपने नया जो आप नया प्रोजेक्ट लगा रहे हो उसका आरओआई कितना है? न्यू प्रोजेक्ट आफ्टर टैक्स सर 60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, मुंह से कह रहा है 10% बचेगा हमें, लेकिन वो 10% पे भी तो टैक्स दोगे ना। तो 60 मिलियन का 10% इज 6 मिलियन, 6 मिलियन का 0.75 इस करीब करीब 4.5, ठीक है। तो 4.5 वहां से कमाओगे, 4.5 तकरीबन वहां से कमाओगे। लेकिन सर नए प्रोजेक्ट पे जो बॉन्ड इशू किया उस पर इंटरेस्ट भी तो देंगे। बिल्कुल सर, इंटरेस्ट कॉस्ट तो देंगे, बिल्कुल देंगे।
तो 60 मिलियन के जो हमने बॉन्ड इशू किए, आराम काम किया, इंटरेस्ट तो देंगे। 60 मिलियन के जो हमने बॉन्ड इशू किए इसके ऊपर हमें 7.5% का इंटरेस्ट देना है, और वो इंटरेस्ट भी पोस्ट टैक्स होगा। ठीक है, वो इंटरेस्ट भी हमारा पोस्ट टैक्स होगा। तो चलो गोरो गए तो समझ आता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बेनिफिट है। ये बन जाता है 3.375। 3.375 का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 3.375 का करीब करीब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 18 प्लस 4.5 माइनस 3.375, ये बन जाता है करीब करीब 19.125। रिवाइज्ड फोरकास्ट ऑफ आफ्टर टैक्स अर्निंग्स। आफ्टर टैक्स अर्निंग्स का रिवाइज्ड फोरकास्ट आपके सामने जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है ना, तो हमने इस तरीके से एक रिवाइज्ड आफ्टर टैक्स अर्निंग्स की भी एक कैलकुलेशन यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कर ली। ठीक है, अब इसने थियोरेटिकल एस्पेक्ट से हमसे क्या पूछा था? थियोरेटिकल एस्पेक्ट में इसने पूछा था डिस्कस द फीजिबिलिटी, discuss the feasibility and effectiveness of the defense strategies of selling off individual garden centers and enhancing directors remuneration। हाँ भाई, क्या कहते हो? ये जो यहाँ पे इन्होंने हमें स्ट्रैटेजी बताई है कि हम बेच बाच देंगे, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन बढ़ा लेंगे, क्या लगता है इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपके क्या कमेंट्स है? थ्योरी वाला पार्ट मैंने कहा था थोड़ा सा हम इसके अंदर कवर करेंगे, तो उसको थोड़ा सोचने का तरीका का आपको आइडिया मिलेगा। जी भाई बताए, क्या लगता है आपको ये सही तरीका है गार्डन सेंटर्स को बेच देना और बेच के कहना कि भाई कोई कंपेटिटर हमें एक्वायर नहीं करेगा? चले ताहिर साहब बीइंग वेरी ऑनेस्ट सर, नो आइडिया। भाई देखो, एक एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह सोचो ना। पहला पॉइंट आप यहाँ पे ये लिखो कि जब आप सेल कर दोगे तो आपके पास कैश आ जाएगा बहुत सारा। जब आप इस तरह के डिविजन्स को सेल कर देंगे, गार्डन सेंटर्स को उठा के बेच देंगे आप, तो गार्डन सेंटर्स को उठा के बेचने पे आपके पास बहुत सारा कैश आ जाएगा। ठीक है, जब कैश आ जाएगा तो आप इसको यूज कहाँ करेंगे? क्या इस कैश के बदले आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं? अगर आप कहते हैं कि आप उस कैश से इक्विटी को बाय बैक करेंगे तो समझ आता है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी, डायरेक्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाएगी, फिर कोई इतनी आसानी से डायरेक्टर्स को निकाल नहीं सकता। लेकिन अगर आप बाय बैक करते हैं तो कंपनी के ऑपरेशंस तो छोटे हो जाएंगे, कंपनी तो छोटी हो जाएगी। कैसे वो वेल्थ मैक्सिमाइज हो पाएगी जिसके ऊपर कंपनी ने सोचा था कभी? अगर बायबैक होता है तो कंपनी का साइज तो छोटा हो जाएगा। अब देखो, ये कोई कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है जो किसी किताब के अंदर आपको लिखी हुई मिलेगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी बुक के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि देखो ऐसी थ्योरी आएगी, इस थ्योरी पे ये जवाब देना, इस पे ये जवाब देना। यू हैव टू थिंक लाइक अ फाइनेंशियल एडवाइजर। जितनी आपने थ्योरी पढ़ी होगी, जितना आपने सवालों को रेफर किया होगा, जितना आपने चीजों को रेफर किया होगा, मिलते जुलते सवाल देखे होंगे, उतना आपका इंशाल्लाह ताला थ्योरी को लेकर आइडिया स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको एंड तक ये चीज तंग करती है कि नहीं मुझे थ्योरी समझ ही नहीं आती, तो फिर अपने आप को अजियत में डालने के बजाय प्रैक्टिकल पे ध्यान दो। प्रैक्टिकल अच्छा करके आ जाना, थ्योरी में अगर 2-3 नंबर आगे पीछे हो भी गए तो प्रैक्टिकल से कवर हो जाएंगे। तो भाई आप कैश का करोगे क्या? अगर बाय बैक करोगे तो फिर कंपनी छोटी हो जाएगी। अगर छोटी कंपनी है तो फिर तो कंपेटिटर शायद और इंटरेस्टेड हो जाए। फिर इट्स स्मॉल कंपनी, तो कंपेटिटर का जो रीच है, कंपेटिटर की जो कैपेबिलिटी है टू एक्वायर, वो तो इंक्रीज कर जाएगी एक्विजिशन के हवाले से। वो बहरहाल आपके पास यहाँ पे जो है वो काफी हद तक इंक्रीज कर जाएगी, और कंपनी शायद अपने उस लॉन्ग टर्म पर्पस को, उस लॉन्ग टर्म माइंडसेट को उस तरह से अचीव नहीं कर पाए। तो ये तो कभी भी एक अच्छा मेथड नहीं कहलाएगा कि अगर आपको डर लग रहा है कि कंपनी को एक्वायर ना कर ले, इसके इसके डर से आप कंपनी की चीजें ही बेचना शुरू कर दो। ये रिटर्न कम कर देगा, कंपनी के प्रॉफिट्स कम कर देगा, कंपनी के पास ऐसे रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। तो ओवरऑल लेवल पे शेयर होल्डर्स के साथ ज्यादती हो जाएगी। कंपनी की वैल्यूएशन वक्त के साथ साथ हिट कर जाएगी, वैल्यूएशन वक्त के साथ साथ नीचे आ जाएगी।
और जहां तक ये कह रहे हैं कि भाई दूसरा ऑप्शन जो इन्होंने दिया है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ज्यादा पे करो, ये देखो लिखा हुआ है हायर रेम्यूनरेशन पे करो और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज कर दो, ये भी कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर्स हमेशा एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होते हैं। डायरेक्टर्स हमेशा एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होते हैं, वो शेयर होल्डर्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस तरह से अगर वो अपनी रेम्यूनरेशन को बढ़ा रहे हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को तो कम कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को आगे रख रहे हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया है बहुत बड़ा, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच रहे, शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोच रहे। जो 75% दूसरे इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी को ओन करते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है कंपनी में, उनके बारे में वो नहीं सोच रहे। तो ऐसे बिजनेस ओरिएंटेड पॉइंट्स के बारे में आपने सोचना है, इस तरीके से आपने थ्योरी को हैंडल करना है। अब जैसे यहाँ पे एक और सिचुएशन में इसने यहाँ पे बोला, discuss the approach taken to the employee remuneration by Kingdom Co's Northern region and the issues associated with it। तो यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने बताया मैं लास्ट पैराग्राफ में कि भाई ये मिनिमम वेज नहीं दे रहे, तो वी विल डेफिनेटली से कि यार अगर आप रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे तो दिस विल ब्रिंग डिसरिप्यूट फॉर द कंपनी। ठीक है, लॉ का पार्ट नहीं है वो, लेकिन पब्लिक एक्सपेक्टेशन तो है ना, एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तो है ना। ठीक है, इट्स नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल, दिस मिनिमम वेज इज नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल, बट इट इज एटलीस्ट अडॉप्टेड इन द सोसाइटी। कल को एम्प्लॉई को मौका मिलेगा, वो आपकी कंपनी छोड़ के चला जाएगा किसी और के पास, तो आपका ह्यूमन कैपिटल कैसे डेवलप होगा, ह्यूमन एसेट कैसे डेवलप होगा? ह्यूमन एसेट नहीं डेवलप हो पाएगा, डिसरिप्यूट होगा। आप कभी भी अपना वो ह्यूमन एसेट नहीं डेवलप कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म लोग नहीं डेवलप कर पाएंगे। हर बार नए लोग आएंगे, उनको आप ट्रेनिंग देते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो आपने एटलीस्ट जो जमाने में मिनिमम वेज चल रहा है उससे कुछ तो कंप्लाई करना है, कुछ तो आपने सूरत हाल ऐसी बनानी है कि लोग आपके पास रुक सके। तो इस तरीके से बहरहाल हमारे पास ये दो छोटे छोटे थ्योरी के एक आस्पेक्ट हमारे पास जो है वो इस तरीके से बन गए। सिचुएशन पे डिपेंड करता है भाई, सिचुएशन में जैसी थ्योरी पूछी जाएगी वैसे आपने सोचना है, उस एंगल में सोचना है। एक शेयर होल्डर की तरह सोचना है, एक फाइनेंशियल एडवाइजरी की तरह सोचना है, एक अच्छे एनालिस्ट की तरह सोचना है, फिर जवाब देना है। अकाउंटिंग से मत लिंक कर देना किसी चीज को, अल्लाह का वास्ता। बीएफडी में कोई चीज नहीं है अकाउंटिंग से रिलेटेड कि रेम्यूनरेशन ज्यादा होगी तो ये वाला इम्पैक्ट आ जाएगा और आईएफआरएस में ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और कंपनी लॉ के हिसाब से ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। यहाँ बात एसेंस की हो रही है, यहाँ बात शेयर होल्डर्स की वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन की हो रही है। सो विद दिस हमारा ये वाला सवाल भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है।